Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start a completely new series that is going to be the World Geography Division series through 450 MCQs. Now the special thing about this series is that all the concepts that is related to physical geography, oceanography, the mountains, the lakes, plateaus, mineral resources, the international borders, all of these concepts have been covered in the 450 MCQs. Also, the special thing about this series is that all the MCQ options that are given are explained as well. So, कहने को तो there are 450 MCQs, but in detail you are going to cover 1000 plus facts in this video. So, let us start this video. But before starting, if you want the PDF of this video, you can see the pinned comment section. The PDF is available just for ₹29, in which 1000 plus facts have been given. Now just watch the video for some time and you'll get to know कि इस video की आपके लिए कितनी utility है. Now, the first is about the fundamental concepts, which is related to obviously physical geography का part. So the first question is, who proposed the sea floor spreading theory? The options are Alfred Wegener, Copernicus, Harry Hess and Galileo. So the correct answer to this question is Harry Hess. Now Harry Hess proposed this theory in the year 1960. Now he introduced the sea floor spreading theory, which later contributed to the plate tectonic theory. Now what is the concept behind sea floor spreading? Now according to this theory, the magma which is present at the core, it rises at the mid-oceanic ridge, okay, because there are convectional current. Now where are this convectional current flowing? ये convectional current flow करते हैं mantle में, ठीक है. mantle में जो current flow करते हैं, the mid oceanic ridge, इसकी वजह से it tends to move. Now when this magma solidifies, it forms the basaltic crust, and then this basaltic crust, it spreads outward and the sea floor spreads. This theory was proposed by Harry Hess in the year 1960. Now, as I promised you, the options, the explanation to the options is given as well. So let us see the options now. Now, here is Alfred Wegener. Now, Alfred Wegener, he proposed the continental drift theory. Now, what is the continental drift theory? Now, according to this theory, there was a landmass named Pangaea and there was a vast river which is known as Peninsula. Okay? Now, the drifting of these forces, as we have seen, caused the continental drift. And the various evidence to this theory is also available, as the coastline of, अगर आप अफ्रीका and South America की coastline देखोगे, तो it appears somewhat very much similar to each other. Other than that, the same species, the species of Mesosaurus, etc., have been found in South America, and same species have been found in the African continent. Ghana में मिले हैं. So these all are the examples which approves about the continental drift theory. The next option is Copernicus. So Copernicus formulated the heliocentric model. Now this question can also be asked in your examination. So आपको ये पता होना चाहिए. Copernicus formulated the heliocentric model. Next is Galileo. Now Galileo has supported the heliocentric model with telescopic observation. Okay, the first question is finished. Let's now move to the next question. What does the Chandrasekhar limit represents? It represents a maximum temperature of star. It represents limit beyond which the star collapses internally. Next it is tells us about the density of black holes, or it is the hottest star in the universe. So the correct answer is Chandrasekhar limit is a limit beyond which the stars collapses internally. Now this defines the critical mass where white dwarfs collapses into neutron stars or black hole, beyond which जितने भी white dwarfs होते हैं, ये सारे के सारे it merges or it gets submerged into the black hole. Okay. Now let us see the other options. यहाँ पे option है given about the temperature and the density. So the temperature and density has nothing to do with the Chandrasekhar limit. Also, it is not related to the hottest star of the universe. Which is the hottest star? Just for your sake of your knowledge, Sun is the hottest star. Okay. So B is going to be the correct answer. Next is, which planet is the hottest in our solar system? It is obviously the Venus planet.
sorry, not Mercury, but Venus. Why Venus? Although Mercury is closest to the sun, but Venus हमारा hottest planet है because it has a thick atmosphere which is rich in carbon dioxide, causing extreme greenhouse effects. Okay, Mercury, it is rather closer, but it lacks an atmosphere. And Mars and Earth, these are on the third and fourth number respectively. So these are not hottest. So the hottest planet is Venus here. Also, एक fact और यहाँ पे ध्यान रखना, Venus and Mercury, these two are those terrestrial planet that do not have their own satellite. इनका अपना कोई moon नहीं है. Earth has one satellite, Mars has two satellite, Phobos and Deimos. Okay. And if I talk about the largest number of the moon, so Saturn planet has the largest number of moon. Okay. Next is, what is the heliocentric model? As we have seen, heliocentric model proposed कितने किया था? So it was proposed by Copernicus. So let us see the options here. The Earth-centered model of the universe, the Moon-centered model of universe, the Sun-centered model of solar system. So obviously हमारा C यहाँ पे correct answer है. Why it is correct? Because helio means the thing that is related to sun. So this is the sun-centered model. Okay, it was proposed by Copernicus. This model replaced the geocentric view. Okay. Now the Earth-centered model, the model which is called Earth-centered is known as geocentric model, and Moon and galaxy-centered, these are not at all any conventional models. So अभी हमने कहने को तो 4 क्वेश्चंस किए हैं, but we have revised more than 14 to 15 points. Now which planet lacks the natural satellite? मैंने आपको बताया था Venus, it lacks the satellite because Venus and Mercury have no moons. ठीक है. Mars has 2 moons, दोनों के नाम मैंने बता दिए, एक तो है Phobos, एक है Deimos. These are the moons of the Mars. And then Jupiter and Saturn have many moons, in which Saturn have the highest number of moons. Next is, which element is the most abundant in the Earth's crust? So the correct answer is oxygen. If crust की बात की जाए तो oxygen is the most abundant, which is followed by silicon and aluminum. Now, if I ask the question that the most abundant element on the Earth, then you'll say aluminum is the correct answer. But crust में the most abundant element is aluminum. The most abundant element is oxygen on the Earth crust. ठीक है? Oxygen makes about 46.6% of the Earth crust. By the way, silicon and aluminum follow oxygen. It means oxygen first पे है, then it is followed by silicon, and then it is followed by aluminum. Okay. Now iron is very much prominent in the core. Now if I talk about the core, if I talk about the composition, so there is Sial, there is Sima, and there is Nife. ठीक है. अब इसका कैसे करें? Sial is silicon aluminum, ये upper most crust में मिलता है. Sima is silicon and magnesium, and then there is nickel and iron. So Fe means iron. So core में हमारा iron is present in abundant quantity. So that is why ये point यहाँ पे यही explain करता है कि iron is very much abundant in the core. I hope you have understood. Let's now move to the next question. That is, what is the equatorial circumference of the Earth? Now the equatorial circumference is around 40,000 kilometers. Roughly अगर बात करें 40,000 किलोमीटर है इक्वेटोरियल सर्कमफरेंस, एंड अगर रफली में बात करूं तो 40,075 किलोमीटर है. सो अदर ऑप्शंस दैट आर गिवन आर वेरी मच इनएक्यूरेट. 40,000 किलोमीटर एक ब्रीफ आइडिया आपको याद होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द अर्थ एक्सियल tilt फ्रॉम द elliptical axis? So the tilt is about 23.5 degree. Now what does this tilt cause? अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री tilted है. Now this tilt causes the seasonal variation. Okay. Now अगर मैं बोलूं आपको कि कोई चीज यहाँ पे 90 डिग्री पे है, and if I tell you another thing, that is it is slightly inclined 23.5 डिग्री. ठीक है. 23.5 डिग्री अगर कुछ inclined है,
तो इट मीन्स दैट कि सन की रेज वहां पे पड़ेंगी। सो सीजनल वेरिएशन इज वेरी मच सो। अगर मैं बात करूं कि अगर वो टिल्ट 23.5 डिग्री ना होके इट इज 45 के अराउंड, सो क्या होगा, एक्सट्रीम सीजन विल बी कॉज। एक एरिया होगा अर्थ का ऐसा, इफ द टिल्ट इज मोर देन 23.5 डिग्री, एक एरिया अर्थ का ऐसा होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी बिकॉज द इट विल रिसीव द सनरेज। ठीक है, सनरेज रेगुलरली उस एरिया पे हिट करेंगी, सो इट विल बी वार्म। एंड द पार्ट विच इज away from the rays of the sun, which is away from the rain of the sun, will also witness the extreme temperature. Extreme temperature in the sense कि बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर होगा वहां पे। ओके, सो 23.5 डिग्री पे अर्थ का एक्सियल टिल्ट है एंड इट कॉजेज द सीजनल वेरिएशन। ऑल्सो 0 डिग्री पे तो कोई सीजन ही नहीं होगा क्योंकि एक ही साइड पे सारी की सारी क्या कहते हैं, 0 डिग्री का क्या मतलब है कि एक जगह पे ही सनरेज विल हिट एंड वहीं पे गर्मी होगी एंड द पार्ट दैट इज अपोजिट टू दैट विल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट cold weather, and 45 for 60 degree भी will cause extreme temperatures only. So 23.5 is absolutely correct. Other than that आपको एक बात और ध्यान रखनी है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में, if I talk about the rotation वाला part, it causes the day and night का phenomenon on the earth, and the revolution causes the change in the seasons. Revolution causes the change in the seasons. ठीक है, क्लियर हो गया। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज नीफे इन जियोलॉजिकल टर्म्स। अभी मैंने बताया था आपको इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द कोर। एंड कोर क्या है, इनर लेयर ऑफ द अर्थ तो है, यही तो बताया था मैंने आपको। एटमोस्फेरिक लेयर तो लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर होगी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। दीज आर द लेयर ऑफ द अर्थ, जिसमें कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है इफ यू नो। ट्रोपोस्फेयर में मोस्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक चेंजेस, बारिश वगैरह एटसेट्रा, ऑल ऑफ दी सिग्निफिकेंट चेंजेस टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन होती है एंड ओजोन लेयर भी यहीं पे है। ओके, तो ये तो हमारा इससे रिलेटेड है। इनर लेयर ऑफ द अर्थ मैंने आपको बता दिया था, सियाल सीमा अभी बताया था। सो नीफे हमसे पूछ रहा है, सो नीफे इज निकल एंड फेरम दैट डिस्क्राइब्स द अर्थ कोर। ओके, अदर ऑप्शंस आर नॉट एट ऑल रिलेटेड, सो हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लैनेट हैज गैनीमेड एज इट्स सैटेलाइट। नाउ गैनीमेड जो है, दिस इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। ठीक है, अर्थ के पास हमारा एक ही सैटेलाइट है दैट इज मून। मार्स के पास मैंने बताया आपको 2 सैटेलाइट्स हैं एंड सैटर्न का लार्जेस्ट जो सैटेलाइट है दैट इज टाइटन। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया होगा। सो सन सैटर्न्स लार्जेस्ट इज टाइटन। अर्थ एंड मार्स हैव स्मॉलर मून्स इन विच अर्थ के पास एक एंड मार्स के पास हमारे 2 मून्स हैं। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिटिंग द जुपिटर। सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेज ऑफ द मून कॉजेज अ सोलर एक्लिप्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, किसी ने बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा तभी वो ये क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। ठीक है, अब कौन सा मून अपने कौन से फेज में होता है व्हेन इट कॉजेज द सोलर एक्लिप्स, इट इज द न्यू मून। ओके, during a solar eclipse what happens is that the moon blocks the sunlight on a new moon day. It means what, it means कि moon comes in between the earth and the sun. मून जब अर्थ एंड सन के बीच में आता है देन देयर इज सोलर एक्लिप्स एंड ये होता है न्यू मून वाले दिन। ठीक है, अब न्यू मून वाले दिन तो हमारा सोलर एक्लिप्स होता है, ये तो हमने देख लिया। सो लूनर एक्लिप्स कब होता है, लूनर एक्लिप्स होता है ड्यूरिंग द फुल मून। ठीक है, फुल मून के दिन पे होता है हमारा लूनर एक्लिप्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट एंड आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पेरीहीलियन सिग्निफाई। एंड ये क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने भी पूछा है, सो दिस क्वेश्चन बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ
पेरीहीलियन क्या सिग्निफाई करता है? द पॉइंट वेयर द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम सन, अर्थ क्लोजेस्ट अप्रोच टू मून, अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एंड मून इज नियरेस्ट टू द अर्थ। सो दो पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो पॉइंट है पेरीहीलियन एंड दूसरा पॉइंट है हमारा एपहीलियन। नाउ पेरीहीलियन इज अ पॉइंट व्हेन द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एंड ये पॉइंट कब होता है? दिस पॉइंट कम्स ऑन जनवरी 4th। ठीक है, जनवरी 4th के दिन पेरीहीलियन होता है इन विच द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट दैट अदर कंसेप्ट जो मैंने आपको एपीहीलियन बताया अभी, सो द एपीहीलियन इज द पॉइंट व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड ये पॉइंट होता है हमारे 4th जुलाई को। ठीक है, सो दोनों पॉइंट्स यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। पेरीहीलियन से रिलेटेड दो बातें ध्यान रखनी है। 4th जनवरी को होता है सबसे पहला तो ये, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अ पॉइंट व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट to the sun. On the other hand, aphelion is a point when the earth is farthest to the sun and it happens on 4th July. I hope you have made the things clear. Next देखना, which scientist discovered that the earth is spherical? अभी हमने कोपरनिकस को देखा था, he presented the heliocentric model. heliocentric model क्या था? दैट एक सन है जिसके अराउंड जो प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल में था। गैलीलियो ने सपोर्ट किया था हेलियोसेंट्रिक मॉडल को थ्रू टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। ये भी समझ में आ गया। नाउ अर्थ स्फेरिकल है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हूम? सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो है टोलेमी एंड देन देयर इज एरिस्टोटल। So Aristotle was the first person to assert that Earth was spherical based on the observation of lunar eclipse and horizon curvatures. Okay, so ये fact आप ध्यान रखेंगे, Aristotle was the one. Okay, now Galileo, as we have seen, has supported heliocentrism, but he didn't discover the Earth's shape. This we have seen. Copernicus focused on the solar system structure, that is the heliocentric model. Now Ptolemy proposed a geocentric model that हमने पहले देखा था। तो टोलेमी के रिगार्डिंग आपको ये ध्यान रखना है, he proposed a geocentric model that is the earth centric model. Now which satellite belongs to Jupiter and the largest in the solar system? We have seen this is Ganymede, but ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्यों दिया है? ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, but why have I included this? I have included this to clear the other name of the moons जो आपके क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग वाले सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो टाइटन वी हैव ऑलरेडी सीन, बिलोंग्स टू सैटर्न। यूरोपा की मैं बात करूं, इट ऑर्बिट्स जुपिटर। यूरोपा इज ऑल्सो a moon of or a satellite of Jupiter. एंड एक और बात ध्यान रखना, यूरोपा क्लिपर मिशन भी है, यूरोपा क्लिपर मिशन which has been initiated by the European Space Agency. ठीक है, सो यूरोपा क्लिपर मिशन भी ध्यान रखना। एंड फोबोस एंड डाइमोस, ये दो मून्स मैंने आपको बताए थे, ये दोनों मून्स जो हैं वो मार्स के हैं। सो दिस आई हैव ऑलरेडी मेड यू क्लियर। ठीक है, सो हमारा गैनीमेड क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी इन द सन? इट इज ऑब्वियसली द न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में क्या होता है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो दो पॉइंट्स में होना चाहिए, फ्यूजन एंड फ्यूजन में, बट सोलर एनर्जी का कॉज होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, नाउ सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, प्राइमरली हाइड्रोजन एटम फ्यूजिंग टू फॉर्म हीलियम। ये आप ध्यान रखना कि फ्यूजन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स दे फ्यूज टू फॉर्म्स हीलियम। ठीक है, अब अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। फिजन रिएक्शंस, दीज आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अभी अर्थ में जो हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं दैट आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, उसमें हमारा फिजन होता है। ठीक है, कंबशन ऑफ गैसेस, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कोर्स। एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इज एमआरआई। अगर आपको ध्यान हो तो एमआरआई इट इज यूज्ड इन द हेल्थ फील्ड, ठीक है, टू प्रोक्योर स्कैन्स एंड ऑल। सो इट इज अ डायग्नोस्टिक टूल दैट इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सो मैग्नेटिक रेजोनेंस हमारा उससे रिलेटेड है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ वी हैव टू चेंज आवर टॉपिक। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग द प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक एंड लैंडफॉर्म। ओके,
Now, who first proposed the theory of plate tectonics? अभी जब we were doing the first question ना, वहां पे हमने क्या देखा था? हैरी हेस ने एक मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है? हैरी हेस ने वहां पे मॉडल प्रपोज किया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हमारा, क्या बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बाद में मैंने आपको बताया था दैट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी अल्टीमेटली इट लेड टू द proposition of the plate tectonics theory. So सबसे पहले plate tectonics theory was proposed by whom? Let us see the options. Alfred Wegener, he is related to continental drift. ये तो हमें पता चल चुका है अब तक. Harry Hess is related to the sea floor spreading theory, जो हमने अभी देखा. Next is L. Wilson and others, and the next one is Morgan Freeman. अब Morgan Freeman तो मेरे को कोई लग नहीं रहा कि he was a geologist. More or less, I think he is a Hollywood actor. ठीक है, तो ये तो ऐसे ही दे दिया मैंने यहाँ पे. L. Wilson and others in 1960 they proposed the plate tectonics theory. Okay, let us see the explanation. Plate tectonics theory was developed in 1960s by Wilson, Morgan, Parker, Hess, and others. Now, Wegener proposed continental drift, not plate tectonics. Harry has contributed to seafloor spreading, and Morgan Freeman is obviously a famous actor and not a scientist. Okay, clear हो गया. Next है हमारा question number 17. So let's see. Next is, what is the ring of fire known for? Now, ring of fire, let us see the options. Cold ocean current, coral reefs, earthquake and volcanoes, and forest fire. Now, ring of fire is particularly a area in the ocean. ठीक है? And which ocean? So, Pacific Ocean. Now, this area is very much famous for the devastating earthquakes and the volcanic activities taking place in this area. So, this ring of fire is associated with earthquakes and volcanic activities. Okay, so C is going to be the correct answer. As I tell you about the coral reef, the largest coral reef system is present in the Australia, which is known as the Great Barrier Reef. In addition to that, our Lakshadweep Islands has also have to do also have the coral reefs. Talking about the cold ocean currents. Now, basically, ocean currents are of two types. This is the hot ocean current or warm. Let us say it warm ocean current and cold. Now, this cold ocean current and warm ocean current, these carry the waters from equator to the poles and poles to the equator. दो different currents का दो different यहाँ पे function है. Some of the warm ocean current is Brazil current, Kuroshio current, Gulf Stream. These are all the example of cold ocean, hot ocean, warm ocean current. Whereas cold, Falkland, etc. All of these are the cold ocean current. Forest fire is not a term that is associated. So हमारा correct answer यहाँ पे earthquake and volcanoes हैं. The Pacific Ring of Fire is famous for frequent seismic and volcanic activities due to the plate boundaries. Now, which scale measures the intensity of an earthquake? Now, there are two type of scales which is related to earthquake. One that measures the magnitude and one that measures the intensity. Now, यहाँ पे question है is about the intensity of an earthquake. So here are the four options: Richter, Mercalli, Beaufort, and barometer. So Richter scales, it checks the magnitude कि how much magnitude का भी क्या कहते हैं the earthquake has occurred, and you also need to know current affairs के लिए it is important. An earthquake of around 8.8 magnitude has struck the Kamakacha Plateau, which is in Russia. So the name of the plateau, that is the Kamakacha Plateau. This you need to remember, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है. Now, Mercalli scale is obviously for the intensity of earthquake. Barometer, it is for the humidity, to check the atmospheric pressure. Humidity के लिए there is a tool that is known as hygrometer, ठीक है. Hygrometer is for humidity, barometer is for the atmospheric pressure, ठीक है. Now, Mercalli scale is based on the observed effects and damage caused. Richter scale measures the magnitude. Beaufort is for wind speed. Barometers, it measures the pressure.
magnitude of the earthquake is measured by, so intensity is measured by the Mercalli scale, whereas the magnitude is measured by the Richter scale. Mercalli scale, it measures the intensity. Seismograph, okay, the seismograph is also related to earthquake, which record the waves, okay, not the magnitude directly. And if we talk about the altimeters, so as the alti means height, so it is used to measure the altitude or height. Next है हमारा, which rock type is formed at the earth's surface through hydrological processes? Now here are some different type of rocks that you need to know about. अभी हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस से कौन सी अर्थ रॉक फॉर्म होती है? Now let us see the options: igneous, metamorphic, sedimentary and plutonic. अब अगर आपको igneous के बारे में पता होगा, so this rock is particularly formed by the coolification. It is formed by the coolification of magma. So nowhere it is related to the hydrological processes. ठीक है. Metamorphic rock is formed by a special a significant amount of pressure, heat, temperature that is applied. ठीक है. So hydrological processes से there is the sedimentary rocks that is formed. ठीक है. And if I talk about the plutonic rock, so this is also a form of the molten rock. So plutonic भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. So the correct answer is sedimentary rock. Also अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स कंटेन फॉसिल, तो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. ओके. Sedimentary rocks is formed by a deposition and compaction of sediments at the surface level. And if I talk about the other options, igneous and plutonic, these are formed from the molten rock. Igneous by the coolification of magma. Plutonic is also related to the molten rock, whereas metamorphic is formed under heat and pressure. ठीक है. I hope the concepts are clear. Now which type of rock usually contains fossil? अभी just मैंने आपको बताया है कि it is the sedimentary rocks that contains fossils. Okay. क्यों सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है? क्योंकि फॉसिल्स प्रिजर्व भी वहां पे होंगे जहां पे मिनिमम हीट है. मिनिमम हीट है. अब मैंने आपको बताया इग्नियस तो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे मोल्टेन मैग्मा से. ठीक है. प्लूटोनिक रॉक्स भी वी हैव सीन दैट इट इज रिलेटेड टू द मोल्टेन मैग्मा. मेटामॉर्फिक ऑन द अदर हैंड इज रिलेटेड टू हीट, प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो यहाँ पे भी देयर इज अ फैक्टर ऑफ टेम्परेचर. And sedimentary ke regarding we have seen that it is caused due to the hydrological processes. So hydro means water. So some amount of water is involved. When the water penetrates in the different layer, then the sedimentary layers are formed. Sedimentary rocks is formed. So according to the common logic here, we can directly come to the answer कि हाँ fossil preserve भी वहाँ पे होगा जहाँ पे sedimentary rocks होगी. Fossils are preserved in sedimentary layers due to the minimal heat and pressure. Okay. Now the other types, if I talk, that the heat destroys fossil in all other types. So ये बहुत लॉजिकल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ओके. आई होप कि मैं क्लियर हूँ. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ग्रेनाइट बिलोंग्स टू विच रॉक टाइप? अभी ग्रेनाइट, गैब्रो, ठीक है, these are examples of the type of igneous rocks. ठीक है. Granite is a coarse grained igneous rock formed from the slow cooling of magma. ठीक है. Sedimentary is fossil rich as we have seen, and granite is not metamorphic but it is igneous. Igneous के ये गैब्रो भी हमारा granite, this belongs to the igneous rocks. Next is a very important question. Which gases are typically emitted during the volcanic eruptions? ठीक है. कौन सी गैस is erupted during the volcanic eruptions? So oxygen and nitrogen, CO2 and SO2, methane and ammonia, hydrogen and helium. Now if I talk about the logical point, अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा volcanic eruption से तो ये पोल्यूशन तो करेगा नहीं, क्योंकि आवर अर्थ नीड्स ऑक्सीजन ना. CO2 ज्यादा हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है.
So oxygen to doesn't make sense. Then there is carbon dioxide. Yes, if you have a bit idea that CO2 causes pollution, ये तो सबको पता होगा, then straight away हम ये तो कह सकते हैं कि CO2 तो इसमें होने ही वाला है. Other than that, volcanic eruptions में होता है सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. मीथेन की अगर मैं बात करूं, इट इज प्राइमरली रिलेटेड टू द एनिमल्स. मीथेन इज रिलेटेड टू द लाइवस्टॉक. लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मीथेन जो होता है वो लाइवस्टॉक से निकलता है. ठीक है. इट इज अ गैस दैट इज देयर इन द लाइवस्टॉक. ओके. हाइड्रोजन हीलियम डज नॉट मेक सेंस, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CO2 एंड SO2. Volcanic emissions include carbon dioxide and sulfur dioxide. Now the others, if we see, methane and helium aren't primarily the volcanic gases. So हमारा correct answer यहाँ पे हो जाएगा CO2 and SO2. Okay, so B is the correct answer. Now हमारा next question है which volcano is located in Italy. So यहाँ से हमारा mountains का section यहाँ पे start है. So let us keep this video यहीं तक. अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की इफ़ यू वांट कि वीडियोस की लेंथ ज़्यादा हो, सो डू कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कितने लेंथ की वीडियोस चाहिए. मैं उसी लेंथ की वीडियोस बना लूँगा एज़ पर योर कन्वीनियंस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी. एंड येस, इफ़ यू वांट द PDF एंड आप एक ही बार में 450 क्वेश्चन करना चाहते हो, सो यू कैन ऑब्वियसली डाउनलोड दैट फ्रॉम द पिन्ड कमेंट सेक्शन. ओके, टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to start our second session of the world geography. Now इस वीडियो में what I am going to do is I am going to cover the MCQs and I am also going to tell you the static portion, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी का भी, एंड इन एडिशन टू दैट हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत इफेक्टिवली कवर हो जाएगा. So let us start the video, but before starting let me tell you, if you want to give daily quizzes on various topics, ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट के क्विजेस डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पे कंडक्ट होते हैं. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम. लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. इन एडिशन टू दैट, इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस होल 450 क्वेश्चंस, यू कैन सी द पिन्ड कमेंट सेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वोल्केनो इज लोकेटेड इन इटली. नाउ लेट अस सी. Here are our options: Mount Etna, Mount Fuji, Mount Erebus and Mount Rainier. Now let us try this question by eliminating options. If you see this Mount Fuji, this is in Japan, Mount Fujiyama. Okay. Mount Erebus is there in Antarctica. Okay. And Mount Rainier is in North America. Specifically अगर नॉर्थ अमेरिका में की मैं बात करूं तो ये USA में सिचुएटेड है. ओके, सो हियर वी आर विथ आवर आंसर. माउंट एटना इज द करेक्ट आंसर. ओके, माउंट एटना is an active stratovolcano of Sicily Island. If we talk about others, Mount Fujiyama is in Japan, Mount Erebus is in Antarctica, and Rainier is in USA. Now, if I tell you about the types of volcano, so basically यहाँ पे हमारे पास 3-4 टाइप के volcanoes होते हैं. सबसे पहला तो है हमारा शील्ड वॉल्केनो. ओके, ये जो शील्ड वॉल्केनो होता है ना, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनो एंड दिस इज डोम शेप्ड. डोम की शेप होती है इसकी. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देयर इज माउंट लोआ इन हवाई. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शील्ड वॉल्केनो. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वॉल्केनो, तो शील्ड वॉल्केनो हमारे लार्जेस्ट होता है. सेकेंड इन द लाइन इज कंपोजिट वॉल्केनो. अगर मैं कंपोजिट की बात करूं, सो C फॉर कंपोजिट, एंड C से आप याद रखना ये कोन शेप्ड होते हैं. ठीक है, ये हमारे कोन शेप्ड होते हैं. इन एडिशन टू दैट, जो इसका लावा होता है ये थोड़ा सा थिक होता है एज कंपेयर टू द शील्ड वॉल्केनो, एंड दैट इज वाई, बिकॉज द लावा इज थिक, इट इज लॉट मोर कूलर एज कंपेयर टू द शील्ड वॉल्केनो. ओके, इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस, अभी जैसे हमने देखा था माउंट फूजी और माउंट फूजियामा इन जापान, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट वॉल्केनो. नेक्स्ट इन द लाइन इज कंपोजिट वॉल्केनो, सॉरी कैल्डेरा वॉल्केनो. कंपोजिट तो हमने कर लिया. नाउ कैल्डेरा वॉल्केनो इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो. ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि एक्सप्लोजन के बाद यहाँ पे एक डीप लार्ज डिप्रेशन फॉर्म होता है जिसको कि हम कैल्डेरा बोलते हैं. ठीक है, इसकी वजह से ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ द मैसिव एक्सप्लोजन,
अ क्रेटर इज फाउंड, ओके, अ क्रेटर इज फाउंड, ठीक है। एंड आपने सुना होगा क्रेटर लेक्स का नाम। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में लोनार लेक इज अ क्रेटर लेक, ओके। सो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ कैल्डेरा वॉल्केनो, ठीक है। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंट होता है एक्सप्लोजन का कि वो खुद के ऊपर कोलैप्स हो जाता है एंड अ डिप्रेशन इज क्रिएटेड एंड अ क्रेटर इज फॉर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड जो हमारा लास्ट यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है स्ट्रेटोवोल्केनो, इसके क्या फीचर्स होते हैं? इट इज अ कोन शेप सबसे पहला तो, ठीक है। इजिली मूव नहीं करता है ये बिकॉज द लावा इज वेरी थिक एंड विशियस, ओके। इफ आई टॉक अबाउट दी, और इसके जो साइड्स होते हैं ना ये स्टीप साइड्स होते हैं, ओके। सो दिस इज एन दीज आर द फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटोवोल्केनो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स नाउ मूव टू द क्वेश्चंस वाला पार्ट। अब जितनी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसके बेस पे आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस माउंटेन्स वाले पार्ट के यू कैन इजिली सॉल्व। सो विच वॉल्केनो इज फाउंड इन हवाई? अभी मैंने बताया था हवाई में कौन सा वॉल्केनो है, एक तो माउंट लोआ बताया था, अदर देन दैट माउंट किलुआ इज ऑल्सो देयर, ठीक है। जो माउंट कोटोपैक्सी है दिस इज देयर इन इक्वेडर। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि मैं रैंडमली बता रहा हूँ। ऑल ऑफ दीज हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ वेरियस यूपीएससी एज वेल एज द स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, ओके। Next is, if I talk about Mount Merapi is in Indonesia, ठीक है। Explanation देखते हैं। One of the most active volcanoes, Kilauea is located in Hawaii. Cotopaxi is located in Ecuador, whereas Mount Merapi is there in Indonesia. And Indonesia का एक और volcano है which has been in news, जो अभी एक्सप्लोर किया था, it is Mount Levotobi Laki, ठीक है। ये भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज विच वॉल्केनिक पीक इज इन अंटार्कटिका? अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन में देखा था, डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में इसका आंसर दिया था। माउंट एरेबस जो है हमारा ये अंटार्कटिका में है, ओके। माउंट रेनियर हमने देखा था, माउंट रेनियर हमारा कहाँ था, ये यूएसए में था। एंड माउंट वेसिवस हमारा यूरोप में है, ओके। Erebus is one of the few active volcanoes on a frozen country. This is an active volcano which is in Antarctica, okay. माउंट रेनियर हमने देख लिया था यूएसए में है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अभी तो हमने देख लिया था दीज आर द टाइप्स ऑफ वोल्केनोस, वोल्केनिक माउंटेन्स। अब हम देखते हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अगर मैं माउंटेन्स की बात करूँ ना तो दो टाइप के माउंटेन्स होते हैं बेसिकली, एक तो होते हैं यंग माउंटेन्स, एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। सॉरी, यंग माउंटेन्स जो होते हैं उन्हीं को हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप की मैं बात करूं तो ये होता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। इसमें से जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ना, दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे, तो आपको आंसर यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये हमारा फोल्ड माउंटेन्स ही होगा। बट अगर मैं फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल की बात करूँ ना तो हमारा जो हिमालयाज है ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। अदर देन दैट माउंट एटलस विच इज इन अफ्रीका, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। एंडीज जो माउंटेन रेंज है इन साउथ अमेरिका, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। एंड रॉकीज ये भी हमारे फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन्स की मैं बात करूं सो दीज आर प्रिटी मच ओल्डर एज कंपेयर टू द फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स हमारे, ब्लॉक माउंटेन्स हमारे थोड़े से ओल्डर होता है। सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में आई विल गेट इनटू द डिटेल्स, अभी मैं ज्यादा इनपुट आपको नहीं दूंगा सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यंगेस्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स हमारे होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ओके। नाउ फोल्ड माउंटेन्स like Himalayas are youngest and still rising. Residual and block mountains are the older formations. Next is, which is the longest mountain range in the world? So this is the Andes mountain range. This Andes is situated in South America, ठीक है, and it stretches over 7,000 kilometer across South America. Rockies, Alps तो यूरोप में हमारे, these are shorter, so longest mountain range हमारी Andes mountain range है। Now which fold mountain system is located in Europe? अब धीरे धीरे आपका सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। अरावली तो हमें पता है, ये तो हमारे इंडिया में है, ठीक है।
अभी मैंने बताया था स्विट्जरलैंड के अराउंड का एरिया, दैट वहां पे हमारे एल्प्स माउंटेन है, ठीक है। सो एल्प्स इज देयर इन यूरोप एंड इट इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। इट स्पैन्स ओवर सेवरल यूरोपियन कंट्रीज एंड बॉर्डर्स द मेडिटेरेनियन सी। ये ध्यान रखना, एल्प्स माउंटेन मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है मैपिंग में। एंडीज एंड रॉकीज आर इन अमेरिका। तो एंडीज हमारे साउथ अमेरिका में है, अभी हमने देखा, एंड रॉकीज हमारा जो है वो नॉर्थ अमेरिका, दैट इज यूएसए में है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच माउंटेन डिवाइड्स इंडिया एंड म्यांमार। वेस्टर्न घाट्स तो यहाँ पे हमें पता है हमारे साउथ इंडिया के पोर्शन में है। अराकन योमा इसका करेक्ट आंसर है, बट लेट अस सी दी ऑप्शंस एज वेल। विंध्यास रेंज हमारे सेंट्रल इंडिया में लाई करते हैं, सतपुरा भी हमारे सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करते हैं। तो अराकन योमा जो है हमारा करेक्ट आंसर है। Arakan mountain range, it forms this natural frontier between India and Myanmar. अदर जितने भी ऑप्शन है दैट लाइज entirely within India. ओके, नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। ये हम हमारे कंट्रीज पे क्वेश्चन आ गए। कौन से कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैं? सो अफ्रीका में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, 54 रिकॉग्नाइज्ड सोवरेन नेशंस हैं। Next is, what is the correct ascending sequence of continents by area? तो सबसे लार्जेस्ट जो एरिया है वो एशिया का है, देन हमारा अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका एंड देन यूरोप। एशिया रैंक्स फर्स्ट इन साइज, फॉलोड बाय अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। कई बार इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे एंड आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। नाउ विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन। ये क्वेश्चन स्टेट पीएससी में भी आया हुआ है, and this question has also been asked in the UPSC CDS CAPF examination, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था कि अंटार्कटिका हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट था। अंटार्कटिका जो है हमारा, इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन, बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन, अब आ गए कुछ क्वेश्चंस हमारे प्लेट्यूज एंड वही सारा सेक्शन हमारा चल रहा है। अब अबिसिनियन प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है? नाउ दिस प्लेट्यू, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये तो अफ्रीका में तो है ही। कौन से पार्ट ऑफ अफ्रीका में है? तो ये ईस्ट अफ्रीका में है, प्राइमरली फाउंड अराउंड द रीजन्स ऑफ इथोपिया, ठीक है। एंड आपको मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि विच आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर इथोपिया। एंड पहला क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर रेड सी। रेड सी को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मेरे क्लासेस, मेरे सेशंस के साथ साथ आप अपना रिवीजन करोगे अगर इंटरैक्शन के थ्रू, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सो इट इज लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका। अब आ गया हमारा रेसिडुअल माउंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिडुअल माउंटेन? So a residual mountain is older as compared to fold mountains, and यहाँ पे जो हमारी अरावली रेंज है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारा रेसिडुअल माउंटेन का। अगर मैं बात करूं हिमालयाज, एंडीज और एल्प्स की, ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये हमने देखा है, ठीक है। सो रेसिडुअल माउंटेन है हमारा अरावली रेंज, एंड अरावली रेंज इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर बिकॉज एक अरावली वॉल का एक कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है टू क्रिएट अ ट्री वॉल, ठीक है। अरावली जिस स्टेट्स में हमारे अरावली रेंज है वहां पे, ठीक है। हरियाणा, दिल्ली में तो ये है ही, राजस्थान में भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी हमारी जो पीक है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो माउंट कोजिस्को ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट एल्ब्रस इज इन यूरोप। किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका एंड ये तंजानिया में है। माउंट रेनियर आपको अब याद हो ही गया होगा, दिस इज इन यूएसए, ठीक है। सो ए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वी हैव सीन दिस, ये एंडीज है हमारा। नेक्स्ट है, विच माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। अफ्रीका में एज वी हैव सीन, ये है हमारा माउंट किलिमंजारो। अभी माउंट कोजिस्को, मैंने ऑप्शंस को मैंने ऐसे डिजाइन किया ना कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। एरेबस एल्ब्रस जो है हमारा, ये अंटार्कटिका में है।
ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे गलती शायद बोल दिया है यूरोप में या अंटार्कटिका में, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग था वो। नेक्स्ट देखते हैं, विच डेजर्ट इज मोस्टली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, दैट इज द थार डेजर्ट, क्योंकि ये इंडिया में है एंड इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। थार डेजर्ट हमारा जो है वो मोस्टली पॉपुलेटेड है एंड इट एक्सपेंड्स along the areas of India and Pakistan. Gobi Desert, this is in China, मंगोलिया का रीजन। कालाहारी डेजर्ट भी हमारा आउट ऑफ इंडिया है। विच डेजर्ट इज कंसिडर्ड द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सो दिस इज द एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट कहाँ है, अब ये है हमारे साउथ अमेरिका के रीजन में। कौन से रीजन में, तो चाइल एंड पेरू में। ओके, सो एटाकामा डेजर्ट आपको ध्यान में रखना है। गोबी डेजर्ट, मंगोलिया, एज आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट इज which desert is rich in nitrate deposit, so this is the Atacama desert। mineral deposit वहां पे बहुत ज्यादा है एंड कंट्री कौन सी है, चाइल एंड पेरू। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गिब्सन डेजर्ट का। अब ये गिब्सन डेजर्ट कहाँ है, ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, गिब्सन डेजर्ट इज इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which deserts spans over Botswana and Namibia, so Botswana and Namibia में है हमारा कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, ये डेजर्ट अफ्रीका में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड कालाहारी डेजर्ट के अराउंड हमारा जो सवाना का एरिया है विच इज द टेम्परेट फॉरेस्ट एरिया ऑफ अफ्रीका, ये बोत्सवाना एंड नमीबिया में हमारा कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैटागोनियन डेजर्ट की, यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन डी है पैटागोनियन डेजर्ट। ये कहाँ पे है, ये हमारे साउथ अमेरिका में है एंड टू बी स्पेसिफिक अर्जेंटीना में है। आई होप द थिंग्स आर नॉट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया हमारा टॉपिक ग्रासलैंड का। एंड अगर मैं बात करूं ग्रासलैंड्स की, तो दो टाइप्स के ग्रासलैंड आर वेरी मच फेमस। सबसे पहला तो है ट्रॉपिकल, सेकंड वन है हमारा टेम्परेट, ठीक है ना। ट्रॉपिकल की मैं बात करूं तो ये सेल्वास होता है विच इज इन एरियाज अराउंड अमेजन रिवर का जो एरिया है वहां पे। लेट मी जूम, यहाँ पे फिर आपको अच्छे से दिखेगा। लेट्स टॉक अबाउट डेजर्ट नाउ, सॉरी ग्रासलैंड नाउ। ग्रासलैंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप के ग्रासलैंड हैं। सबसे पहला तो हमारा ट्रॉपिकल आ गया एंड यहाँ पे आपका टेम्परेट ग्रासलैंड आ गया। ट्रॉपिकल की मैं बात करूं तो मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहला तो सेल्वास है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड इट इज सिचुएटेड इन द अमेजन बेसिन का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा कैंपोस। कैंपोस कहाँ है, ये है हमारे ब्राजील के एरिया में। एंड देन नेक्स्ट वन इज और कौन सा था, यस लानोस, दिस इज एन एरिया अराउंड हमारा अर्जेंटीना में। अदर देन दैट टेम्परेट ग्रासलैंड तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डाउन्स की, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है हमारा वेल्ड, ये है हमारा साउथ अफ्रीका में, ओके। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो है स्टेपीज। स्टेपीज हमारा बहुत ज्यादा फेमस है सेंट्रल एशिया के रीजन में, सच एज द कंट्रीज इंक्लूडिंग कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अनदर देन दैट प्रेरीज आ गया हमारा। प्रेरीज हमारे नॉर्थ अमेरिका में, दीज आर देयर। एंड यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड में पुस्ताज है, पुस्ताज इज इन हंगरी। हो सकता है एक दो मेरे दिमाग से मिस हो गए हों, वो हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे, बट मोस्टली हमारे ये ग्रासलैंड्स जो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो जो बचा था वो यहीं पे आ गया। विच ग्रासलैंड इज फाउंड इन अर्जेंटीना, सो पाम्पास अभी मैंने नहीं बताया था, दिस इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड एंड इट इज फाउंड इन अर्जेंटीना। डाउन्स मैंने बताया आपको, दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड मैंने बताया आपको, दिस इज इन साउथ अफ्रीका। प्रेरीज इज इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो यहां तक तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अभी है विच ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइज विद इन द अमेजन बेसिन,
मैं बता चुका हूं आपको, दिस इज दी सेल्वास। कंफ्यूज मत करना ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में, ये दोनों डिफरेंट है, मैंने आपको इसीलिए बहुत एलैबोरेट करके आई हैव टोल्ड यू दिस, ओके, सो डोंट कंफ्यूज दैट। नेक्स्ट इज विच ग्रासलैंड रीजन इज नोन एज द लैंड ऑफ द बिग गेम्स, दिस इज द सवाना, ओके। सवाना कहां पे है? मोस्टली ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट इज विच इंटरनेशनल बॉर्डर इज डिफाइंड बाय द रेडक्लिफ लाइन। अब आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान in the year 1947, the boundary commission was established, which was headed by Sir Radcliffe, and he is officially he demarcated the boundary line between India and Pakistan. If I talk about China, तो इंडिया एंड चाइना की जो लाइन है दैट इज नोन एज मैक-मोहन लाइन, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल के बीच में कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है जिसका एक नाम हो, सो दैट इज वाई दिस जो मेन इंडिया एंड नेपाल का डिवीजन था दैट वाज डन बाय द ट्रीटी ऑफ सुगौली इन द ईयर 1816, ठीक है। ब्रिटिश टाइम में ही ये डिमार्केशन हुआ था, उसी टाइम पे था कि सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन द इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, ओके। एंड अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की तो इसका तो लिबरेशन वॉर था 1971, सो कोई ऐसा लाइन यहाँ पे नहीं है। हाँ, ड्यूरैंड लाइन आपको पता होना चाहिए, इट मार्क्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। सो ड्यूरैंड लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? सो दिस इज अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट इज विच रिवर्स फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द यूएसए एंड मेक्सिको। सो ये क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारी रियो ग्रांडे रिवर। द रियो ग्रांडे रिवर फ्लोज अलोंग द यूएस मेक्सिको बॉर्डर एंड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल जियोपॉलिटिकली। कोलोराडो एंड मिसिसिपी रिवर्स, ये वहां की स्टेट्स का भी नाम है, दैट इज वाई दिस इज कंप्लीटली इन यूएसए, ठीक है। नाउ विच कंट्री डज नॉट बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अभी मेडिटेरेनियन सी को बहुत सारी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एक क्वेश्चन वो दे सकते हैं वहां पे वो जॉर्डन ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ जॉर्डन इट बॉर्डर्स डेड सी एंड नॉट मेडिटेरेनियन सी। इसके अलावा अल्जीरिया, सीरिया, ट्यूनीशिया, ऑल ऑफ दिस बॉर्डर्स द मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन। Next is the Horn of Africa includes which of the following countries? So the Horn of the Africa, it includes Somalia, Djibouti and Eritrea, ठीक है। The Horn, it juts into the Arabian Sea and include 3 countries. Sometimes Ethiopia is also there, but mostly यहाँ पे 3 countries होती हैं। So Somalia, Djibouti and Eritrea is the correct answer. Next is which country is the smallest in South Asia? Maldives जो है that is smallest in South Asia and it is also associated with the Coral Islands. Maldives is associated with the Coral Islands. Next is which country has the longest coastline in the world? कनाडा की जो है वो longest coastline है, that is over 2 लाख किलोमीटर। एंड फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कनाडा है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन की मैं बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया है। थर्ड लॉन्गेस्ट की मैं बात करूं तो ये रशिया है। एंड ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड इन द पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट इज लेक विक्टोरिया सर्व्स एज अ बॉर्डर बिटवीन विच कंट्रीज। लेक विक्टोरिया कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है? सो दिस इज युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। इंटरनेशनल बॉर्डर is created by this lake Victoria, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, लेक विक्टोरिया सर्व्स एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। नेक्स्ट इज द 38th parallel divide which countries? So it divides the North Korea and South Korea, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूएसए एंड कनाडा की तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर अगर किसी 2 कंट्रीज की हैं तो वो है यूएसए की एंड कनाडा की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विच कैपिटल सिटी इज एसोसिएटेड विद युगांडा? सो कंपाला इज द कैपिटल ऑफ युगांडा, ठीक है। अभी हमने देख लिया था युगांडा, तंजानिया, ठीक है। ये सारे जो हैं ये लेक विक्टोरिया इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। कौन सी कंट्रीज की? अभी देखा था ना हमने यहाँ पे युगांडा, केनिया और तंजानिया। सो ये लेक विक्टोरिया ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूं तो किगाली, दिस इज इन रवांडा,
एंड किगाली की अगर बात हो रही है तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए किगाली एग्रीमेंट. You should know about the Kigali Agreement that was signed in the year 2016. And what is this Kigali Agreement? This you will tell me in the comment section. Kinshasa is in the Democratic Republic of Congo. And let me tell you a fact about the DRC. DRC की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे M23, ठीक है, is a rebel group. So this question can be asked in the examination that M23 recently seen in the news is related to what? So this is an militant rebel group working in the Democratic Republic of Congo. Okay. Khartoum is in Sudan. Okay. Next is, what is the capital city of Turkmenistan? This is Ashgabat. Okay. ताशकंद जो है, दिस इज इन उज्बेकिस्तान. ये मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे कहीं भी आपको पूछ सकते हैं. ठीक है. बिश्केक ये है हमारे किर्गिस्तान में, एंड दुशांबे इज इन तजिकिस्तान. नेक्स्ट इज बाकू, द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, लाइज नियर विच सी? तो इट लाइज नियर द कैस्पियन सी. अब कैस्पियन सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो कैस्पियन सी इज बॉर्डर्ड बाय, इसका एक निमोनिक है, ये आपको ध्यान में रखना है. निमोनिक का नाम है तारिक. टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए स्टैंड्स फॉर अजरबैजान, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई स्टैंड्स फॉर ईरान एंड के स्टैंड्स फॉर तजाकिस्तान. ठीक है. सो बाकू इज इन अजरबैजान एंड इट लाइज नियर द कैस्पियन सी. ठीक है. एरल सी की मैं बात करूं तो इट लाइज बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये भी आपको ध्यान में रखना है. एड्रियाटिक सी हमारे यूरोप में है. ठीक है. एंड इसकी बॉर्डर्स कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है? तो एक मॉन्टेग्नेरो है, स्लोवाकिया है, इटली है, ठीक है, बॉस्निया है. These all are the countries that border the Adriatic Sea. Next is, which water body connects the Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean? So Mediterranean Sea को Atlantic Ocean से connect करती है Strait of Gibraltar. ठीक है. Suez Canal, it connects the Mediterranean Sea to Red Sea. Okay. And Panama Canal जो है ये Atlantic Ocean को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन से. ओके. सो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर नैरो पैसेज है. स्विस कैनाल, इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन टू द रेड सी. पनामा जॉइंस द अटलांटिक एंड पैसिफिक कैनाल. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है हमारे पर्शियन गल्फ में, इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान. विच कंट्री बॉर्डर द एरल सी? अभी मैंने बताया था कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, बोथ ऑफ दिस कंट्रीज बॉर्डर द एरल सी. सो ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज, विच सी इज लोकेटेड बिटवीन फिनलैंड, स्वीडन एंड द बाल्टिक्स? ये हमारा है बाल्टिक सी. ठीक है. बाल्टिक सी की बॉर्डर्स जो है वो 9 कंट्रीज के साथ शेयर होती है, इंक्लूडिंग जर्मनी, एस्टोनिया एंड रशिया. ठीक है. जर्मनी, एस्टोनिया, रशिया, ये 3 तो यहाँ हो गए. फिनलैंड भी हो गया, स्वीडन भी हो गया. इसके अलावा कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है बाल्टिक सी के साथ? दिस विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? सो दिस इज सेपरेटेड बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर. इट लिंक्स द मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, इट कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन. Let us see the other options as well. Bering Strait, ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में है. Strait of Hormuz, it connects the Persian Gulf with the Arabian Sea. The Panama is an artificial lake in Central America, जो अटलांटिक को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है. Which strait connects the Indian Ocean to the South China Sea? This is the Strait of Malacca. Okay, it is a vital maritime route between Indonesia and Malaysia, and ये कनेक्ट करता है Indian Ocean to South China Sea. Park Strait, it connects India and Sri Lanka. Bab el-Mandeb, it connects the Red Sea with the Indian Ocean. And the Sunda Strait connects the Java with Sumatra. This is an important question. यहाँ से कहीं से भी कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. ठीक है. Now, which strait separates the India's Andaman Island
from the Nicobar Island. So this is the 10 degree channel. ठीक है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है. मलाक्का स्ट्रेट हमने देख ही लिया. पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार ये मेनलैंड इंडिया के साउथ में पड़ते हैं. सो दिस इज इट. नेक्स्ट इज विच कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन टू द रेड सी. दिस इज द सुएज कैनाल. ओके, पनामा अटलांटिक एंड पैसिफिक को कनेक्ट करती है. कील कैनाल जो है दिस इज इन जर्मनी. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉकिंग अबाउट सू कैनाल, तो इट कनेक्ट्स ग्रेट लेक्स इन दी नॉर्थ अमेरिका. सो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए सू कैनाल ये हमारा कहां पे है, सो दिस इज इन नॉर्थ अमेरिका. नेक्स्ट इज विच कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशंस. जस्ट राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज द पनामा कैनाल. Which dam is located on Zambezi River at the Zambia Zimbabwe border? So this is the Kariba Dam. Kariba Dam अफ्रीका में है and it is on the Zambezi River. ठीक है. Aswan Dam is there on Nile. भाखड़ा नंगल is in India and Hoover is in USA. Important है ये सारे के सारे questions आपको पता होने चाहिए. In which country the Aswan Dam is located? So this is in Egypt. ठीक है. Across Aswan Dam is in Egypt and it is built across the river Nile. Nile flows through very several countries, but the dam is in Egypt. Next is which coral reef is the largest in the world? So this is the Great Barrier Reef that is in Australia. And Australia के कौन से part में है? So north eastern part में है and it is around 2300 kilometers long. ठीक है. Next is which atmospheric layer contains the ozone layer. ठीक है, अब हम थोड़े से एटमोस्फेरिक पार्ट में आते हैं. ठीक है, एटमोस्फेरिक पार्ट्स को देखते हैं. which atmospheric layer contains the ozone layer? So this is the stratosphere. ठीक है, 15 to 20 kilometers above the earth's surface this is found. Troposphere is mainly associated with weather. Mesosphere is the layer जहां पे meteorite burn करते हैं and it is also the coolest layer of the atmosphere. And thermosphere is related to the auroras. Auroras या northern lights सुना है ना, northern lights जो कि इंडिया में लद्दाख में भी it has also been seen in the Hanle National Park. ठीक है. Auroras are also of two types. एक तो है auroras borealis, this which is also known as the northern lights, and the auroras australis which is the southern lights. Next is which atmospheric layer supports the telecommunications. This is the ionosphere. ठीक है. This is rich in ionized particles that reflects the sound waves. Now troposphere is the lowest layer and most of the weather activities happens in this. Mesosphere is the coolest layer and इस layer में क्या होते हैं तो meteors burn करते हैं. Next is what does the albedo refers to? So albedo is referred to the reflection वाले things. ठीक है. So it refers to the reflecting power of the surface. जितना ज्यादा albedo होगा उतना ज्यादा reflection होगा. And if I talk about कि सबसे ज्यादा albedo किसमें होता है, so ये होता है हमारा fresh snow में. Fresh snow because it is white, so it has highest albedo. ठीक है. So it is the reflecting power of a surface. Cyclones are caused by which of the atmospheric factor? Cyclone कौन से atmospheric factor से cause होते हैं? Humidity drop, rise in temperature, jet stream interference, sudden fall in barometric pressure. Jet stream और rise in temperature तो हो नहीं सकता. Humidity drops या तो A है या C है. आंसर हमारा यहाँ पे है sudden fall in barometer pressure. Okay. Temperature and jet stream assist, but the pressure is the key. Okay. The cyclone is called Willy Willy. Which cyclone is called the Willy Willy? So ये ऑस्ट्रेलिया का जो साइक्लोन है this is known as Willy Willy. ठीक है. इंडिया में जो साइक्लोन है उसको हम साइक्लोन्स ही बोलते हैं. ठीक है. यूएस में उसको हरिकेन बोलते हैं. जापान में उसको टाइफून बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट इज विच साइक्लोन टाइप अफेक्ट्स जापान. सो इट इज द टाइफून दैट अफेक्ट्स जापान. हरिकेन यूएसए में आता है इन द अटलांटिक रीजन. साइक्लोन्स आर देयर इन द इंडियन ओशन रीजन एंड विली विली जो है दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है.
समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आ गया तो लेट्स मूव अहेड. Why is dew not formed on a cloudy night? Why? Because the cloud blocks the earth radiation from escaping. ठीक है. Radiative cooling is reduced, that is why the surface temperature stays high. So for the formation of dew, cloudy night should not be there, clear sky होना चाहिए. नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द सॉइल टाइप दैट इज कॉमन इन द टेम्परेट रीजन. अब टेम्परेट रीजन में कौन सी सॉइल कॉमन होती है? अब अगर मैं फॉरेस्टेशन की बात करूं, कौन सी वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट आर देयर? सो टुंड्रा. Tundra is related. Tundra is a biome that is related to the cold regions. And if I talk about the soil types, so the podzol is the soil type that is found in cold condition. Laterite is a soil that is found in the areas having high temperature and high moisture. ठीक है. High temperature and high moisture and humidity में laterite soil होती है. Black soil is popularly known as the Regur soil, and it is higher retentive of moisture. ठीक है. And it is very much adequate for growing the cotton crop. तो ब्लैक सॉइल हो नहीं सकता. रेड सॉइल हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में फॉर्म होती है, सो ये भी नहीं हो सकता. सो पॉडजोल इज द वैरायटी ऑफ soil that is formed in the forested cold climatic acidic and leach soil. Laterite is tropical. Black soil is rich in clays. Red soil is found in warm and dry areas. Which soil type is typically found in the hot and humid climate? अभी मैंने बताया था hot and humid climate में laterite soil form करती है. पॉडजोल तो हमने देख लिया, ये तो कूलर टेम्परेचर में होती है. डेजर्ट सॉइल तो हो नहीं सकती बिकॉज ये ड्राई कंडीशंस में होगी. एल्यूवियल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, तो ये भी नहीं हो सकती. ठीक है. एंड एलुवियल का क्या मतलब होता है? एलुवियल सॉइल इज अ सॉइल which is very much dependent on the rivers. Why rivers? Because these rivers carry the sediments. These rivers carry the sediments, and because these rivers carry the sediments, and these are the perennial rivers. May it be North India का region देख लो, most of the alluvial soil is found in the northern part of India. May it be the Indus river system, जो हमारी इंडस रिवर सिस्टम की कुछ रिवर्स हैं, जैसे ब्यास है, झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज. इंडस तो इट नॉट फ्लोज इन इंडिया. इंडस तो बस थोड़े पार्ट में इंडिया के है. अदर देन दैट सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है, ऑल ऑफ दिस पंजाब में है. इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है पंजाब हरियाणा के एरिया में है. सो दिस इज एन एलुवियल सॉइल का एरिया. देन गंगा रिवर सिस्टम है हमारे होल ऑफ द मिड इंडिया में. ठीक है. यमुना हो गया. यमुना की फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं केन, बेतवा, सिंध. ठीक है. गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं कोसी है, गोमती है, यमुना है, सोन है. ये सारा हमारा मिडिल ऑफ द इंडिया कवर करती हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर देयर. मे इट बी तीस्ता, मे इट बी तीस्ता, मे इट बी द सुबनसिरी, मे इट बी मानस, मे इट बी दिहांग दिबांग. ऑल ऑफ दीज रिवर, मे इट बी सुबनसिरी, ये सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करती हैं. सो मोस्ट ऑफ द रीजन इंडिया का एलुवियल सॉइल के अंडर आता है, एंड इट इज अ रिवराइन सॉइल. ठीक है. सो हमारे यहाँ पे आंसर पर्टिकुलरली हो जाएगा लेटराइट. नेक्स्ट है हु प्रपोज द जियोग्राफिक साइकिल ऑफ इरोजन. सो डेविस. थोड़ा सा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए मैंने आप इंक्लूड कर दिया. डेविस प्रपोज द जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन. नेक्स्ट इज which country is the top producer of wheat and rice? So obviously China is the topmost producer of wheat and rice. If I talk about the second rank, कौन सी कंट्री का है for the wheat and rice? So second rank है हमारे इंडिया का. ठीक है. USA leads in soybean, Brazil leads in sugarcane, India ranks just behind China. Next है which country leads in the sugarcane production? It is the Brazil. ठीक है. Which country produces sugar from sugar beets? This is Ukraine. Ukraine. Important हो सकता है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए. The Ukraine's cold climate favors the beet cultivation.
Which country is the top coconut producer? So the topmost coconut producer is Indonesia. Next is, where is the tobacco primarily produced? Tobacco जो है, it is primarily produced in the Cuban region. Cuban tobacco is very much famous. ठीक है, क्यूबा की जो सिगार है, it is very much famous. Next is, which country leads in soybean production? अभी हमने देखा USA leads in the soybean production. And if I talk about India, India में कौन सा state है that leads in the soybean production? So that is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh leads in the soybean production. Next is, which country is the highest producer of law syrup? It is China. ठीक है, सिल्क रूट भी यहां से ये मर्ज होता था, which via India was extended to the Central Asian का region. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, which country leads the rubber production? It is the Malaysia that leads in the rubber production. इंडिया की मैं बात करूं अगर रबर प्रोडक्शन की, तो हमारा केरला जो स्टेट है ये लीड करता है रबर प्रोडक्शन में. Which country is famous for olive cultivation? Italy is very much famous for olive cultivation. अब इसमें तो ये सारा कुछ तो फैक्चुअल है, ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है. दैट इज वाई आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज, native land of groundnut peanut is Brazil. Which country is the top coal producer? Obviously China is the topmost coal producer. Which type of rock is most associated with the coal formation? अब हमारा आ गया यहाँ पे rocks वाला segment. अब अगर मैं rocks के बारे में बात करूं तो rocks mainly जो है that एक काम करते हैं. अच्छा ठीक है, चलो मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ, रॉक्स वाला सेक्शन हम खत्म कर देते हैं. अगर मैं रॉक्स की बात करूँ ना टिपिकली, तो रॉक्स हमारे तीन टाइप्स की होती हैं प्राइमरली. एक तो होती है इग्नियस रॉक, एक होती है हमारी मेटामॉर्फिक, एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक के बीच में आती है सेडिमेंट्री. अब इग्नियस रॉक वो रॉक होती है जो कूलिंग ऑफ मैग्मा के बाद डायरेक्टली फॉर्म होती है, जिसका कि एग्जांपल मैं दूं आपको तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, प्यूमाइस है, गैब्रो है, टफ है. दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक. जब इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में ब्रेक करती है, देन द सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में फर्दर लिथिफिकेशन जब होता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होती है. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का मैं एग्जांपल दूं तो लाइमस्टोन इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक. इसके अलावा शेल, कॉन्ग्लोमरेट एटसेट्रा, उसमें भी अलग अलग तीन वैरायटीज होती हैं, दैट इज केमिकली फॉर्म, नेचुरली फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. मेटामॉर्फिक की मैं बात करूं तो हमारी हो गया मेटामॉर्फिक एग्जांपल्स कौन से थे? मार्बल, ऑब्वियसली मार्बल है, क्वार्ट्ज है, ऑल ऑफ दिस एज एन एग्जांपल ऑफ जिनेसाइड है. ठीक है, ऑल ऑफ दिस एग्जांपल आर द एग्जांपल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक. जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं कवर करूंगा. सो पॉइंट की बात यहाँ पे ये है कि कोल क्या है. बेसिकली कोल इज फॉसिल ना. सो इग्नियस रॉक में आप मुझे बताओ इतनी ज्यादा हीट होती है बिकॉज वो मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन से फॉर्म होता है, तो क्या फॉसिल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा. मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है? लेयर फॉर्म होती है, लिथिफिकेशन एंड फॉइलेशन से लेयर फॉर्म होती है. ठीक है, तो क्या अब वाटर पेनिट्रेट कर रहा है या लेयर्स फॉर्म होती हैं तो फॉसिल बचेगा? नहीं बचेगा ना. फॉसिल कहां पे बचता है? सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में. एंड दैट इज व्हाई कोल फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड है. ठीक है, igneous and metamorphic conditions are too extreme for the fossils to exist. Which soil type is common in the cold temperate regions? हमने देख ही लिया था ये हमारी पॉट सॉइल है. Next, which soil is typically formed in hot and humid climate? This is laterite. Next is, who proposed the geographical cycle of erosion? I think yes, कुछ questions repeat हुए हैं यहाँ पे. तो ये डेविस है. टॉप प्रोड्यूसर इज चाइना. देखते हैं कहां तक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हमारे. ये सारे क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं. यस, सीधा हम स्टार्ट करते हैं 106 से. डोंट वरी, पीडीएफ में आई विल एडिट दी क्वेश्चंस. ठीक है, भाई कुछ एरर हो गया है, ह्यूमन एरर की वजह से ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए यहाँ पे. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विच कंट्री डज ग्रीनलैंड बिलोंग्स?
पॉलिटिकली बिलोंग्स टू, तो ग्रीनलैंड जो पॉलिटिकली बिलोंग करता है वो डेनमार्क को करता है। नेक्स्ट इज विच आइलैंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड? सो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बाद हमारा न्यू गियाना, ठीक है। इट इज शेयर्ड बाय इंडोनेशिया एंड पापुआ न्यू गिनी, इट इज सेकेंड ओनली टू द ग्रीनलैंड साइड। बोर्नियो जो है दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड, सुमात्रा एंड मेडागास्कर आर वे बिलो। सो अगर मैं टॉप 3 की मैं बात करूं, सो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड, सेकेंड इज न्यू गियाना, थर्ड इज हमारा बोर्नियो, ठीक है। नेक्स्ट इज बोर्नियो इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? सो इट इज शेयर्ड बाय द 3 कंट्रीज, ठीक है। इट इज डिवाइडेड बिटवीन इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। Next is which island chain belongs to Ecuador and is of the volcanic origin? This is the Galapagos Island. Galapagos Island, ठीक है। And it is important, ये UPSC में CDS एग्जाम में, I think CDS या NDA में this question has been asked. So this Galapagos Island is in Ecuador, ठीक है, and it is famous for unique species and Darwin studies. Now, which Japanese island lies furthest south? So क्यूशु जो है दिस इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड, ठीक है। होक्काइडो जो है दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड एंड हॉन्शू इज द सेंट्रल मोस्ट। अब हॉन्शू की मैं बात करूं, ऑल्सो द हॉन्शू इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। विच कंट्रीज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड? इंडोनेशिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, अराउंड 17,000 आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है which sea is a part of North Atlantic and contain the marine vegetation? So Sargasso Sea, it is very much important. पिछले 4 साल में at least 6 to 7 times this question has been asked, ठीक है। So ये हमारा equally important हो जाता है। This is the Sargasso Sea and it is very much unique for its floating seaweed and calm waters. नेक्स्ट इज विच सी इज बॉर्डर्ड बाय इटली, सिसिली एंड सार्डिना। अभी मैंने बताया था आपको, दिस इज द त्रिहेनियन सी, ओके। नेक्स्ट इज विच सी इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग स्वीडन, पोलैंड, रशिया? बाल्टिक सी था ये, ठीक है। कैस्पियन सी जो है दैट इज लैंडलॉक्ड, इसका तो मैंने आपको बताया था बाय द निमोनिक तारीख, ठीक है। ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी का भी टी एंड बर्गर एक निमोनिक है जिससे वी कैन डिफरेंशिएट। टी स्टैंड्स फॉर टर्की, ठीक है। बी फॉर बल्गेरिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, जी फॉर जॉर्जिया एंड आर फॉर रशिया। ऑल ऑफ दिस बॉर्डर्स द ब्लैक सी। विच ओशियन करंट इज वार्म एंड फ्लोज नियर द साउथ अफ्रीका? दिस इज द अगुलास करंट एंड इट इज इन द इंडियन ओशियन, ठीक है, एंड इट इज अ वार्म करंट। बेनेलुगा करंट इज अ कोल्ड करंट। लैब्राडोर करंट भी जो है वो एक कोल्ड करंट है। नेक्स्ट है विच करंट इज कोल्ड एंड फाउंड इन द सदर्न अटलांटिक ओशन? दिस इज द बेनेलुगा करंट, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है दिस इज अ वार्म करंट। अगुलास इज ऑल्सो अ वार्म करंट, ठीक है, एंड ये कहां पे है? इंडियन ओशन के रीजन में है। सो बेनेलुगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओशन सैलिनिटी इज हाईएस्ट एट विच लैटिट्यूड? सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन में ओशन की जो सैलिनिटी है दैट इज हाईएस्ट, ठीक है। इक्वेटर पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वाटर इज रेगुलरली रिचार्ज, सो इवापोरेशन ज्यादा नहीं होता, न्यू वाटर इज कंटिन्यूसली बीइंग एडेड, दैट इज व्हाई इक्वेटर पे एंड पोल्स पे, बिकॉज पोल्स पे ठंड होती है एंड ग्लेशियर्स पिघलते हैं, सो वहां पे भी बहुत ज्यादा सैलिनिटी नहीं होती है। इट इज फाउंड इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकन। Which ocean has the deepest trench? The Mariana Trench. तो Mariana Trench जो है that is there in the Pacific Ocean, ठीक है। Which trench is located in the Indian Ocean? So Indian Ocean में है Sunda and Java Trench. Puerto Rico Trench ये है Atlantic में, and Kermadec Trench this is also in Pacific, ठीक है। Sunda and Java Trench जो है ये Indian Ocean में है। Next is which river has the largest drainage basin in the world? So this is obviously the Amazon River, ठीक है। नाइल जो है that is the longest river but not in area. Yangtze river जो है this is the largest in Asia. Mississippi हमने देखा था, this is a river in USA.
Next is which river flows into the South China Sea and forms the borders between the several South Asian countries? This is the Mekong River and this is very much important. अब मेकोंग रिवर के बारे में मैं बताऊं तो मेकोंग रिवर इट फ्लोज थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, एंड फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री. ओके, गंगा रिवर तो हमारे गंगा रिवर इज इन इंडिया, इडावडी इज इन म्यांमार, यांगसी इज ओनली इन चाइना. यांगसी रिवर इंडिया में आके इट बिकम्स ब्रह्मपुत्र. Which plains are located in Japan? So Kanto and Nobi plains, these are located in Japan. Kanto is around Tokyo and Nobi is near Nagoya, and these are the Japan's most fertile area. Next is which island is the largest area in the New Zealand? So South Island जो है, it has the largest area in New Zealand. Which is the largest island in the world? Greenland is the largest island in the world. Which island is shared by Indonesia, Malaysia and Brunei? So जो Borneo island है, this is shared by Indonesia, Malaysia and Brunei. Next है हमारा which island group belongs to Ecuador and is famous for evolutionary studies? This is the Galapagos Island. Next is arrange the major islands of Japan from north to south. हमें अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ. अब अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था कि क्यूशू इज द आइलैंड जो कि सदर्न मोस्ट है एंड होक्काइडो जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है. अब होक्काइडो हमें यहाँ पे मिल गया, हॉन्शू हमें पता था सेंट्रल पार्ट में है एंड क्यूशू इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड. सो अगर मैं करेक्ट ऑर्डर की बात करूं सो होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू एंड क्यूशू, दिस इज द राइट ऑर्डर. नेक्स्ट है हमारा विच कैरेबियन आइलैंड इज लोकेटेड इन द लेसर एंटिल्स? सो दिस इज द ग्रेनेडा. Next is which country has the highest number of island? Indonesia we have seen. Now next हमारा स्टार्ट हो रहा है लेक्स का पार्ट, बट इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. टुडे वी हैव ऑलरेडी डन 100 के अराउंड क्वेश्चन, 100 तो नहीं, अराउंड 15, आप 10 क्वेश्चन माइनस कर लो, 90 क्वेश्चन किए हमने. एंड इन द कमिंग 2 वीडियोस वी आर गोइंग टू फिनिश ऑल ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, 2 से 3 वीडियोस में हम ये सीरीज को एंड कर देंगे. सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना व्यूज़ ज़रूर बताना है, सजेशन ज़रूर देना. ठीक है, क्विज अगर देना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन. एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड द पीडीएफ ऑफ ऑल 450 क्वेश्चंस, you can see the pinned comment section. So thank you for watching this video and keep studying. Hello everyone, welcome to the channel. So in today's video we are going to continue our session of world geography, in which we are going to complete 450 MCQ questions of the world geography. Now question number 129 we have already covered. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन वॉच द डिस्क्रिप्शन. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यू कैन वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट. नाउ इन टुडेज सेशन you will get to know about the various deserts, various lakes and various mapping questions about the world geography. In addition to that, you will also get to know about the questions of the physical geography and the concepts that is related to physical geography. Okay, but before starting the lecture, I would like to tell you that a current affair theme wise program, theme wise quiz is currently being held on the Telegram channel. So you can join the Telegram channel. You can see the details of that quiz there, जहाँ पे आपके 1 साल की current affairs, theme wise current affairs, जिसमें कि 500 MCQs के थ्रू हम इसको कवर कर रहे हैं. You can join that initiative. So let us start the session. Also, if you want the PDF, you can see the pinned comment section. You will find the link to download the PDF from there only. Now the first question is, which lake dried up and turned into a desert in Mali? So to know about the lakes of Mali, you need to know about the lakes जो यहाँ पे दी हैं. Now यहाँ पे जो second option है हमारा, this is not lake Jacobin, this is lake Fagubin. ठीक है. Now Mali में the name of the lake that has dried up and turned into a desert is Lake Fagubin. Now if I talk about Lake Fagubin, this is located in Mali. And if we talk about the other options, यहाँ पे लेक विक्टोरिया की अगर मैं बात करूँ तो it is there in the countries of Uganda,
as well as Kenya, as well as Tanzania. ठीक है, इन 3 कंट्रीज में दिस लेक विक्टोरिया एक्सटेंड्स, एंड लेक विक्टोरिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आफ्टर द लेक सुपीरियर. एंड ये लेक सुपीरियर कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, बट यू नीड टू नो अबाउट द कंट्रीज जहाँ पे ये लेक विक्टोरिया है, दैट आर युगांडा, केनिया एंड तंजानिया. Lake Fagubin we have seen, it has turned up into a desert, and this is in Mali. Now talking about Lake Tanganyika. Now this lake extends in the Democratic Republic of Congo and Tanzania and Zambia. Okay, so in 3 countries में Lake Tanganyika है, and it is also the longest freshwater lake. It is the longest freshwater lake in the world. Talking about the Lake Malawi, this Malawi lake is a UN World Heritage Site. UN World Heritage Site है ये, and this extends to the country of Malawi. Then ये है तंजानिया में, and then है ये मोज़म्बिक में. यहाँ पे एक कॉमन चीज़ ये निकल के आई है कि तंजानिया में हमने देखा कि तंजानिया में हमारी लेक विक्टोरिया भी है, लेक तंगनिका भी है, एंड लेक मलावी भी है. सो ये फैक्ट से आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो तंजानिया में अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, दैट इज़ माउंट किलिमंजारो. ओके, आई होप कि ये फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. लेट्स नाउ मूव टू दी अनदर क्वेश्चन. विच लेक स्ट्रैडल्स द बॉर्डर बिटवीन द बोलीविया एंड पेरू. सो बोलीविया एंड पेरू के बॉर्डर पे है लेक तितिकाका. ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेक है, इसका नाम आपको याद रखना है. ऑल्सो लेक तितिकाका इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक. ओके, एंड ऑल ऑफ दीज, लेक मारासियाबो, लेक पूपो एंड लेक निकरागुआ, ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो इन साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका. बट बोलीविया एंड पेरू के बॉर्डर पे है लेक तितिकाका, एंड इट इज़ ऑल्सो द highest navigable lake of the world. Next is, which lake in Russia is the deepest freshwater lake in the world? So this is a pretty easy question. ये है हमारी लेक बैकाल. Okay, now if I talk about the deepest point in the ocean, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि the deepest point in all of the 5 oceans, this is located in the Pacific Ocean. ठीक है, and Pacific Ocean में भी there is a place known as the Mariana Trench. This is the deepest point in the earth. Okay, if I talk about the Java or the Sunda Trench, and the Sunda Trench, this is in Indian Ocean के region में है. I hope the facts are clear now. Next is, between which 2 lake is the Niagara Falls located? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द नाइग्रा फॉल्स है, दिस इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड द यूएसए. एंड यूएसए का जो न्यूयॉर्क स्टेट है वहाँ पे है ये नाइग्रा फॉल्स. सो विच 2 लेक्स इज़ बिटवीन द नाइग्रा फॉल्स? इट इज़ द लेक एरी एंड लेक ओंटारियो. ठीक है, लेक ओंटारियो इज़ ऑन द यूएसए पार्ट. ठीक है, सो लेक एरी एंड लेक ओंटारियो इज बिटवीन द नाइग्रा फॉल्स. नेक्स्ट इज, विच ग्रुप ऑफ लेक इज इंटायरली विद इन द यूएसए? ओके, सो दिस इज द मिचिगन एंड द ग्रेट सॉल्ट लेक, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट. मिचिगन इज ऑल्सो अ स्टेट इन यूएसए, सो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं. एंड इन एडिशन टू दैट, द ग्रेट सॉल्ट लेक, दिस इज ऑल्सो इन यूएसए. एक यहाँ पे एक द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये आप ध्यान रखना. ठीक है, द मिचिगन इज़ द ओनली ग्रेट लेक फुल्ली विद इन द यूएसए. सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई लेंथ? जस्ट राइट नाउ वी हैव डेल्ट विद दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज़ द लेक तंगनिका. एंड फॉर द रिविजन पर्पसेस यू नीड टू नो, this extends in Tanzania, then है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड देन देयर इज युगांडा.
सॉरी नॉट युगांडा बट तंजानिया। तंजानिया तो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड देन जाम्बिया है ऑफ कोर्स। ओके, लेक विक्टोरिया जो हमने देखी थी, दिस इज इन तंजानिया, दिस इज इन युगांडा एंड केन्या। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज विच स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका। अब ये जो गिब्राल्टर स्ट्रेट है, दिस इज़ इन द रीजन ऑफ यूरोप, सो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मलाका स्ट्रेट इज़ इन द इंडोनेशिया पार्ट, ठीक है। इंडोनेशिया पार्ट इज बेसिकली, ये समझ लो कि दिस इज़ इन द इंडियन ओशन का रीजन। एंड पाक स्ट्रेट, तो दिस इज़ इन द, इट सेपरेट्स द इंडिया मेनलैंड टू श्रीलंका। सो करेक्ट आंसर हमारा एलिमिनेशन के थ्रू बेरिंग स्ट्रेट ही आएगा। ओके, now the Bering Strait connects the Arctic Ocean with the Bering Sea between the Russia and Alaska. Okay, so the Bering Strait, it separates Asia from the North America. Which strait connects the Red Sea to the Indian Ocean? अब मलाका एंड सुंडा ये तो इंडियन ओशन में है, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड बाबल मंडेब में, बट रेड सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से बाबल मंडेब। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इट कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, एंड कौन से एरिया को कनेक्ट करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, this Bab al-Mandeb Strait, it lies between the Yemen and Djibouti area, and this Hormuz connects the Persian Gulf with the Arabian Sea. Which canal links the Lake Superior with Lake Huron? So this is the Suez Canal. Okay. Next is, which canal connects the Baltic Sea with the Elbe estuary? This is the Kiel Canal. These are just the facts, जो important चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। एंड दिस एल्बे एस्चुरी, ऑल ऑफ दिस इज इन जर्मनी। ओके, जर्मनी में टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ऑल्सो देयर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट का जो एरिया है दिस इज इन जर्मनी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज, विच इज़ द लार्जेस्ट नेविगेशन कैनाल इन द वर्ल्ड बाई ट्रैफिक? सो ट्रैफिक की मैं बात करूँ, सो दिस इज द सुएज कैनाल। ओके, पनामा कनाल भी है, इट इज़ इन साउथ अमेरिका, बट रिपोर्टेडली अगर मैं शिप्स की मूवमेंट की बात करूँ, कार्गो हैंडलिंग की बात करूँ, सो दिस सुएज कैनाल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड एक बात और याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अभी न्यूज़ में रहा है। वाई? बिकॉज रिसेंटली आफ्टर द टाइटनिंग ऑफ द टाइज बिटवीन द ईरान एंड द USA एंड इजराइल, Iran also, the government, the parliament of Iran also passed a resolution to close the Strait of Hormuz. Okay, so ये important है, ये ध्यान रखना आप। Which reef is located off the northeast coast of Australia? So we know that Australia में there is the Great Barrier Reef, which is the largest corals, which constitute the लार्जेस्ट कोरल्स इन द वर्ल्ड। सो ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एवरेज वर्टिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर? नाउ यहाँ पे कुछ पोर्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिजिकल ज्योग्राफी का, सो दैट द थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल। टॉकिंग अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, अगर मैं लेयर्स की बात करूँ ना, तो सबसे लोएस्ट लेवल पे है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेवल। ट्रोपोस्फेयर के जस्ट अबव इज द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव इज द मीसोस्फेयर। ओके, देन आता है हमारा आइनोस्फेयर, देन है अल्टीमेटली एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इज द लेयर आउटर स्पेस वाला पार्ट है। ओके, ट्रोपोस्फेयर में मोस्ट ऑफ द वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द लेयर जहाँ पे ओजोन इज़ फाउंड, ठीक है। अब ओजोन के बारे में बात करूँ, सो ओजोन इज़ such a type of gas that has both positive as well as negative impact on the environment. Why? Because when ozone is found at the lower levels, मतलब कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ट्रोपोस्फेयर में, when the ozone is there at the troposphere, it is harmful, it acts as a pollutant. But ozone at the layer of stratosphere, it helps to filter the ultraviolet rays,
ठीक है, यूवी रेज को यहाँ पे रिपेल करने का काम करती है ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। मीसोस्फेयर की मैं बात करूँ तो इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर, मीसोस्फेयर इज़ द कोल्डेस्ट लेयर, एंड जितने भी हमारे मीटियोर होते हैं, मीटियोराइट्स होते हैं, ऑल ऑफ द मीटियोराइट्स दीज बर्न इन द मीसोस्फेयर ओनली। आइनोस्फेयर हमारी ऐसी लेयर है विच इज़ यूज्ड फॉर द रेडियो टेली कम्युनिकेशंस, बिकॉज आइनोस्फेयर वर्ड ही खुद में मीन करता है आयंस, आयंस मीन्स वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, सो दीज हेल्प्स टू कैरी द रेडियो वेव्स, ओके। सो रेडियो कम्युनिकेशन जो भी इस्टेब्लिश होता है ये आइनोस्फेयर में होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। नाउ अब एवरेज वर्टिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर क्या होगा? सो 12 किलोमीटर्स हमारा लोवेस्ट लेवल पे होता है, सो द एवरेज वर्टिकल एक्सटेंट इज अराउंड 12 किलोमीटर्स, ओके। Which atmospheric layer hosts the most weather activities? So obviously this is the troposphere, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में स्टेबल एयर नहीं होती है, सॉरी स्टेबल एयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। दैट इज़ वाई नो extent of air activities, no extent of the atmospheric activities is being seen in the stratosphere. Next है हमारा, in which layer is ozone concentrated? Just right now I told you it is concentrated in the stratosphere, ठीक है। नेक्स्ट है विच लेयर इज क्रिटिकल फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज़ द आइनोस्फेयर। इफ़ यू वांट टू रीड द डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब व्हाट इज इंसोलेशन? नाउ इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इट इज़ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ओके। नाउ ये तो रही हमारी सोलर रेडिएशन की बात, बट इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट द अर्थ इज हीटेड बाई, यहाँ से ऑप्शन में अगर आपको दूं कि अर्थ इज मेनली हीटेड बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन और डिफ्लेक्टेड लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इन द एटमॉस्फेयर इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, बट दीज आर ओपेक टू द आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस। दैट इज़ वाई जब वो इनकमिंग लेयर्स, इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ को हिट करती है एंड दीज गेट रिफ्लेक्स बैक, तो जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ट्रैप कर लेती हैं इसको, इन रेडिएशंस को, एंड देन द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। अब यही जब ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होंगी तो ये मोर क्वांटिटी ऑफ रेडिएशंस को ट्रैप करेंगी, एंड ज़्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करने का मतलब है मोर हीट विल बी देयर, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है दैट इट कैपिटलाइजेस। आई होप कि बहुत लेमैन, बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने बताया है आपको। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू आर एबल टू कैच व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। नेक्स्ट इज इंसोलेशन क्या होता है? इट इज़ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। विच रीजन ऑन द अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम सोलर हीट? अब मैक्सिमम सोलर हीट के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने ये बोला कि दिस इज सन एंड ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ आपको हल्का सा टिल्टेड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। टिल्टेड होने की वजह से ही जो सन की रेज है ना ये डायरेक्टली इक्वेटर पे ज़्यादा फॉल नहीं करती हैं। इक्वेटर के जो हल्का सा ऊपर का रीजन है दैट इज़ द 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ के अराउंड का जो रीजन है, दिस रीजन में द अर्थ जो है इट रिसीव्स द मैक्सिमम सोलर हीट। अब यहाँ पे अगर इफ़ आई टॉक अबाउट दी ऑप्शन से ना, पोल्स की अगर मैं बात करूँ तो पोल्स तो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल है, तो यहाँ पे तो कोल्ड टेम्परेचर होता है, यहाँ पे तो सन की रेज जाती ही नहीं है, क्योंकि अगर जाती तो ये दिस रीजन वुड नॉट बी दैट मच कोल्ड। इक्वेटर, अब इक्वेटर में क्या होता है? इक्वेटर में क्लियर स्काइज होते हैं। अब क्लियर स्काइज होते हैं इक्वेटर में, तो ये मुझे बताओ स्काइज क्लियर है, क्लाउड जब रेज को
क्लाउड्स जब होंगे ही नहीं तो जो सन रेज आएंगी वो तो रिफ्लेक्ट होकर सीधा बाहर चली जाएंगी, तो क्या इक्वेटर पे इतना ज़्यादा हीट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो 20 डिग्री जो लैटिट्यूड बेल्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लियर स्काइज होते हैं एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ये एब्जॉर्प्शन रेट को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं एंड यहाँ पे रेज भी ज़्यादा फॉल करती हैं। दैट इज़ वाई हमारा 20 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो सोलर हीट होती है। विच क्लाउड टाइप कॉजेज इंटेंस रेनफॉल्स एंड थंडरस्टॉर्म। अगर मैं अब आपको क्लाउड की बात बताऊं तो जो ग्राउंड लेवल पे क्लाउड्स होते हैं वो होते हैं सबसे पहले स्ट्रेटस, देन है निम्बस, देन होता है हमारा क्यूमुलस एंड देन होते हैं हमारे सिरस क्लाउड जो होते हैं ना ये फेदर शेप्ड में होते हैं, क्यूमुलस हमारे कॉटन वुड शेप में होते हैं एंड सबसे ज़्यादा जो इंटेंस रेनफॉल के लिए जाने जाते हैं दैट इज़ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, सिरस एंड स्ट्रेटस ये माइल्ड वेदर क्लाउड्स होते हैं। नेक्स्ट इज अब साइक्लोन्स का हमारा टॉपिक है यहाँ पे, विच साइक्लोन अफेक्ट्स द फिलीपींस रीजन। सो विली दैट इज़ इन द एरिया अराउंड ऑस्ट्रेलिया। टाइफून जो है ये हमारे फिलीपींस के एरिया में होता है एंड इट इज़ इन द एरिया अराउंड चाइना एंड जापान के एरिया में, दिस इज़ नोन एज टाइफून। हरिकेन इट इज़ नोन इन द एरियाज ऑफ द अटलांटिक, मेनली यूएसए वगैरह के एरिया में, दिस इज़ नोन एज अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन के एरिया में, इंडिया में, दिस इज़ नोन एज साइक्लोन। ओके, हरिकेन्स आर अटलांटिक बेस्ड, विली इज इन ऑस्ट्रेलिया। What indicates a likely storm when using a barometer? तो sudden drop जब होता है प्रेशर में, it indicates the storm like weather is incoming. Now why is dew not found on the cloudy days? ठीक है, why? Because the cloud reflect the earth radiation back. So dew के formation में clear skies का होना ज़रूरी है। Okay, the cloud cover traps heat, preventing the cooling necessary for the dew formation. So dew formation के लिए clear skies चाहिए होता है। Now what causes humidity in the atmosphere? So humidity is directly related to the moisture present in the air. So हमारा यहाँ पे D correct answer हो जाएगा। Next is which clouds are formed due to the condensation and bright and these bring light rays. These are the stratus clouds. Okay, these are the flat clouds and bring drizzles over the overcast sky. Cumulonimbus clouds जो हैं these are associated with the thunderstorms. cirrus मैंने बताया था ये हाई क्लाउड्स होते हैं, सो यहाँ पे stratus ही हमारा ऑप्शन। Next is highest altitude में which type of clouds exist at the highest altitude? These are the cirrus. I have told you this. Next is which latitudes are known as the roaring 40s, furious 50s and striking 60s? So ये this is associated with the southern hemisphere 40 to 60 degree में। These zones are dominated by strong westerly winds। ठीक है, westerly winds का जो एरिया होता है दिस इज़ अराउंड 40 to 60 डिग्री। सो ये सारे जितने कंसेप्ट हैं ये कोर फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं। सो व्हेन आई विल ब्रिंग अ सीरीज ऑन फिजिकल ज्योग्राफी देन आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट कि कैसे ये फॉर्म होता है एंड कैसे विंड्स का मूवमेंट होता है, कैसे ट्रेड विंड्स का मूवमेंट होता है, ITCZ का मूवमेंट कैसे होता है, हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद द मानसून, ये सारा कुछ मैं उसमें बताऊँगा आपको। नेक्स्ट इज़ लेट्स नाउ स्टडी अबाउट द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट, डिफरेंट फॉरेस्ट सिस्टम। बायोम्स की बात करते हैं। विच फॉरेस्ट इज ब्रॉड लीव्ड एंड एवरग्रीन एंड फाउंड इन ब्राज़ील? सो दीज आर द सेल्वा फॉरेस्ट। ठीक है, टाइगा फॉरेस्ट जो हैं दीज आर द कॉनीफेरस फॉरेस्ट, दीज आर द कॉनीफेरस फॉरेस्ट दैट आर फाउंड इन द कोल्ड एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट इज विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन टेम्परेट रीजन? सो जाएगा टाइगा, यहाँ पे जाएगा नहीं है, ये टाइगा है, दिस इज फाउंड इन द टेम्परेट रीजन। विच ट्री स्पीसीज इज टिपिकल ऑफ मानसून फॉरेस्ट? सो दिस इज टीक एंड साल, ये इंडिया के रीजन में मिलते हैं।
Which tree species belong to the equatorial forest? This is the mahogany and rosewood. Acacia and baobab are the savanna trees. नेक्स्ट है विच ट्री इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सहारा डेजर्ट. अब सहारा डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज है अकाशिया. ओके. नेक्स्ट इज विच ट्री इज आइकॉनिक टू द अफ्रीकन सवाना रीजन. दिस इज द बाओबाब. ओके. These stores water in its massive trunks and it survive droughts. Which trees are found in the Mediterranean forest? तो olives and plums जो है वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट के लिए इट इज़ वेरी मच नोन. अब टीक, महागनी, साल, ये सारे के सारे दीज आर द ट्रॉपिकल वेराइटी ऑफ ट्रीज. सो ये तो आंसर नहीं हो सकते. विच ट्रीज डोमिनेट द कॉनिफेरस फॉरेस्ट. अभी हमने पाइन एंड स्प्रूस देखा. सो दीज पाइन एंड स्प्रूस दीज आर फाउंड इन कोल्ड रीजन विथ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स. So these are associated with the coniferous forest. Epiphytes are typical of which zone? So जो ये epiphytes है ना, these need the help of other plants to grow. So ये epiphytal growth जो है, this is very much seen in the equator region. Which tree species is native to Mediterranean region and valued for its timber? This is the cedar. Cedar is very much native to the Mediterranean region. Next is एग्रीकल्चर, मिनरल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं. विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन. दिस इज चाइना. एंड इंडिया की बात करूं मैं तो इंडिया हैज़ द सेकेंड रैंक. विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन द शुगर केन प्रोडक्शन. सो ब्राज़ील लीड्स इन द शुगर केन प्रोडक्शन. इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में उत्तर प्रदेश इज रैंक्ड फर्स्ट इन द शुगर केन प्रोडक्शन. ऑल्सो शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया इज़ वेरी मच प्रिवेलेंट इन द साउथ इंडिया. The sucrose content in the sugarcane of South India is very much higher. Also, yield जो है South India में sugarcane की is very much higher. Next है हमारा which country is notable for sugar derived from the sugar beets. This is Ukraine. Important हो सकता है, so आप इसको ध्यान में रखना. Which country produces the most coconuts globally? So Indonesia produces most coconuts. Which country is a major tobacco grower? This is China. क्यूबा इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स सिगार, बट वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे चाइना टोबैको लीफ प्रोडक्शन में इट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट. विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन. सो सोयाबीन प्रोडक्शन इज़ लार्जेस्ट इन हमारा USA. नेक्स्ट इज विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द रॉ सिल्क प्रोडक्शन. दिस इज चाइना. नाउ लेट्स quickly see the questions. Which South Asian country leads in the rubber cultivation? This is Malaysia, and this is important. Okay. Next is which Mediterranean country is known for its olive production? This is Spain. Very, very important. Spain is very much known for its olive production. Which country is the native origin of groundnut? So Brazil जो है it is native. Groundnut जो है that is native in Brazil. Which coconut country is rich in the coal reserves and production? So China. Which rock type commonly hosts the coal deposits? So the coal are very much found in the sedimentary rocks. Why? Because sedimentary rocks में एक favorable temperature होता है कि यहाँ पे fossil store हो जाते हैं. ठीक है. If I talk about the metamorphic, igneous and volcanic rocks, so these rocks are very much hot. Okay. So it is not possible for the fossils to exist in such a high temperature. Next is which country is the largest exporter of the iron ore? This is Australia. Next is which country in Africa is renowned for its copper mining? This is Zambia. Okay. Which South American nation leads in the copper production? This is Chile. Next is which country is the top producer of the copper globally? So this is also China. Next is which African country has notable copper reserves? This is Zambia. Which country is famous for the gold mine with the Coolgardie mine? So important, the name of the mine is important. This is located in Australia. Which country ranks highest in silver production? This is Mexico. Which mineral is derived from the ore of bauxite? This is aluminium. Which country leads in the production of uranium? This is Kazakhstan. Although जो ऑस्ट्रेलिया में है
वेरी मच हाई रिजर्व्स आर फाउंड, बट जो प्रोडक्शन है यूरेनियम का कजाकिस्तान में हाईएस्ट है. विच रिवर ड्रेन्स इनटू द नॉर्थ सी? दिस इज द रिवर राइन. ठीक है. वोल्गा जो है इट डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी. विच रिवर ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी? दिस इज द रिवर वोल्गा. नेक्स्ट है हमारा विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? दिस इज द कॉन्गो रिवर. एंड दिस जाम्बेजी रिवर दिस डायरेक्टली फॉल्स इनटू द इंडियन ओशन. ये ध्यान रखना है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट. विच ड्रेनेज पैटर्न इज शोन बाय द श्रीलंका रिवर सिस्टम? दिस इज द रेडियल पैटर्न शो करता है श्रीलंका का ड्रेनेज सिस्टम. विच रिवर एक्ट्स एज अ बॉर्डर बिटवीन थाईलैंड एंड लाओस? ठीक है. और थाईलैंड एंड लाओस के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है मेकोंग रिवर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में होना चाहिए. Which island belong to Ecuador and has the volcanic origins? This is the Galapagos Island. Galapagos Islands. Which lake is the world's deepest freshwater lake? This is the Lake Baikal. ये है रशिया में. Okay. Victoria Lake is the largest by surface and Tanganyika Lake is the longest. ये अभी हमने देख लिया है already. So I will not waste time. सारा कुछ मैंने information आपको बता दी है. Which lake is bordered by Uganda, Kenya and Tanzania? This is the Lake Victoria. Which reef dies off in the northeastern coast of Australia? This is the Great Barrier Reef. Next है. Which strait connects the Arctic Ocean to the Pacific Ocean, separating Asia from the North America? This is the Bering Strait. Next is which strait connects the Dead Sea to the Indian Ocean? This is the Bab el-Mandeb Strait. Which canal connects the Lake Superior and Lake Huron? This is the Suez Canal. Which canal connects the Elbe estuary to the Baltic Sea in Germany? This is the Kiel Canal.